अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। नरु मरै नर काम न आवे, नरु पशु मरै दस काज सवारै, पशु मरै दस काज सवारै। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा। हाथ जले जैसे लकड़ी का चूल्हा, हाथ जले जैसे लकड़ी का चूल्हा, केस जले जैसे घास का फूला, केस जले जैसे घास फूला। कहो कबीर तब ही नर जागे, कहो कबीर तब ही नर जागे। जम का दंड मूंग में लागे, जम का दंड मूंग में लागे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं क्या जानूं बाबा रे। प्यारी साध संगत जी, जो शब्द असी गायन किया
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 870 ਅੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤ, ਉਸ ਮੰਦੀ, ਉਸ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਚਰਣਹੀਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਰਹਾਉ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧਾ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਚੱਠ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚੱਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਏਕਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਤੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਪਾਇਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮਕਾਨ, ਟੱਬਰ, ਫੈਕਟਰੀ, ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਦਬਦਬਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਮਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਜ ਉਹ ਕਮਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਿ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਕਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਤੇ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਤੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਝੂਠਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀਮਤੀ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ, ਗੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤੋ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਭਰਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਿੰਸੀਅਰ that you want godly qualities, then you first of all start your introspection. ਜੋ ਜੋ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ।
वैर भरिया है, एनिमोसिटी भरी हुई है, दुश्मन बड़े बनाए हुए ने, भैड़े ख्याल ने मेरे बड़े। मैं इहनूं किवें साफ करा? सतगुरु जी कहते हैं एक तरीका है, तू सारे अवगुण दा बिजनेस कर मेरे नाल। सब तो अपनी घटिया चीज़ जिन्हों तू बहुत प्यार करना है, अपने अवगुण मैनू अवगुण दे जा। अवगुणा के बदले मैं तेनों मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स देंगा, उन्होंने रतन जवाहर माणिक कहते हैं। मत विच रतन जवाहर माणिक जी एक गुर की सिख सुनी सतगुर साडा कूड़ कबाड़ लै लेंदे ने और सानू अमुल गुण अमुल व्यापार वाला खजाना देना शुरू कर देंगे। कितना जबरदस्त व्यापार करते हैं। एक सज्जन मैनू कहते ने, वीर जी फलाने गुरुद्वारे के बाहर लिखा होया इत्थे जोड़े लाओ, फिर ना लिखा है जुराबा भी ला के जाओ। मैं क्या हाँ ठीक है, दूजिया नू स्मैल आएगी। इट्स नॉट रिचुअल, सिंपली एक दूजे का कंसर्न है भी दूजिया नू मेरे बूटा ते जुराबा की मैली स्मैल ना आवे। उन्हें अंदर आके बैठ गया। जदों अंदर आके बैठा तो आस पास वाले नग इस तरह करन लग पे। मैं पूछा की होया? इहदे कोलों स्मैल आ रही है। पूछा तेरे को जिहड़ी स्मैल आ रही है लुक्स लाइक जिवें जुराबां की गंदी स्मैल होंदी है, बाहर तू ला के नहीं आया? तैनूं कहा सी ला। कहंदा मैं बाहर ला दित्ती सी पर बोझे च पा के लिआया। इंज असी सतगुर पातशाह को आंदे हां, अपनी बदबूदार अवगुणा वाली सोचनी नाल लै आंदे हां और नाल ही लै जांदे हां, सरेंडर करदे ही नहीं। सरेंडर कर दिए और उहदे चंगे गुण अपने भांडे च पवा लीए। दैट इज द परपज ऑफ गुरुद्वारा। गुरुद्वारे का परपज सिर्फ मत्था टेक नहीं है। गुरुद्वारे का परपज है मत्था टेक मीनस अपनी जिहड़ी भैड़ी मत है ना यह रख दे। पैसे रखना नहीं है, सोना रखना नहीं है, फुल चढ़ाना नहीं है। मन अरपों धन रख आ गया। अपने मन का जिहड़ा तू धन खजाना बनाया होया ना यह रख। मन की जिहड़ी मत होंदी उहनूं धन कहंदे ने। मन की मत त्यागो अर्जन हुक्म बूझ सुख पाइए। मत्था टेकण दा भावर्थ गुरमत अनुसार। गुरुद्वारे का भावर्थ है मेरे राम हम बारक हैं हर प्रभ के इयाणे। सानू कोई अक्ल नहीं है, असीं इयाणे हाँ। धन धन गुरु गुर सतगुरु पांदा। पांदा हुंदा टीचर, सियाणा मास्टर। तुसीं मेरे पांदा हो, सियाणे हो। धन धन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणे। गुरुद्वारे का परपज। गुरुद्वारा चार दीवारां नूं नहीं कहंदे, दरी नूं कारपेट नूं नहीं कहंदे। गुरुद्वारा मीनस सतगुर दी सच दी मत नूं लेना। गुरु दे दर तो, गुरु दा द्वारा, गुरु दा डोर मत लैंदे आ। पर जे आइए असी भांडा भी ना साफ करिए तो अपने आप को परफेक्ट भी समझन लग पईए। मैं तो आस्तिक ही हाँ। फिर असी सतगुर की मत नहीं लै सकते। मैं तो पहुंचया होया ऑलरेडी, मैं तो पुग्या होया, मैं तो गुरमुख हाँ। पर असी सतगुर पातशाह को मत लैन आंदे इतना ग्रेट इतना प्यारा ग्रंथ तैयार करके सारी दुनिया को दिता। इतना वड्डा ग्रंथ यूनीवर्सल मैसेज सारी दुनिया को गुरु अर्जन पातशाह ने जिहदे पिछे तत्ती तवी ते बहना पिया शहीदी दिती। असीं उहदा एक एक शब्द विचारदे ही नहीं, समझदे ही नहीं। क्यों? मैनूं यह भुलेखा पै गया मैं गया सी मैं जोड़े चाड़ आया, बस मैनूं यह भुलेखा पै गया मैं गया सी मैं दाले नूं कड़छा मार ते आया, मैं गया सी मैं दरियां चाड़ आया। साध संगत इनू सेवा कहते हैं।
ये नम्रता नाल करीदा है। जोड़े भी चाढ़ने, दरियां भी चाढ़नियां, दालां भी पकाना है, प्रशादा भी पकाना है, पर सारा कुछ करदे होया गुरु की गल सुननी है। जे गुरु की गल नहीं सुनी तो मैं अपने जीवन में उच्चिया नहीं कर पावांगा। सिर्फ लेगा मैं धर्म कर्म पूरा कर रहा। एक माता जी ने मैं पूछा, तुहाडी नूंह बड़ी सियाणी लगती है, गुरुद्वारे जाती है, लंगर पकाती है। कहते हाँ, पर उत्थे ही पका के उत्थे ही वरतांदी है, घर मैनूं पानी नहीं पुछदी। ਇਹਦਾ मतलब जो ਅਸੀਂ गुरुद्वारे करते हाँ ਉਹਨੂੰ गुरुद्वारे करके गुरुद्वारे ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ हाँ। सतगुर कहता मेरा माल अपने घर लै जाओ, घर भी करया करो, लोकां नाल भी करया करो। सिर्फ गुरुद्वारे ही नहीं, गुरुद्वारों चंगे गुण सीख के लंगर वरता के नम्रता प्यार ना अपने घर भी करया करो तो सारी दुनिया नूं करया करो। लंगर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कुछ असी रल के अपना पका लिए आप खा लिए। लंगर का मतलब होंदा सिख, इक्वैलिटी सिख और सारी दुनिया नाल वंड छक। ते सब तो पहला सतगुर की मत का लंगर सारी दुनिया नाल वरता। सतगुर की मत का एसेंस उन्होंने खीर के आदिए कहते हैं, वो सारी दुनिया नाल वरताया कर। विजडम सच वरताया कर, चार दीवारां च ही नहीं। बाणी की बनतर जो असी पढ़ते हाँ तो बाणी की बनतर पढ़द्या पता लगता है शब्द का रहाऊ है। अज दे शब्द का रहाऊ है, पर जे रहाऊ ना समझिए तब पहला सिंपल वाले अर्थ कर लेंगे। नरू मरै नर काम ना आवे। द मोमेंट वन ह्यूमन बीइंग डाइज then his body is useless। बंदा मर जाए बंदा कम नहीं आता। सत्संगत शब्द की वर्डिंग इंज लगता है डैथ बारे है। इस करके की होया रागी सिंह जी सिर्फ जिन्हों के घर किसी की डैथ हो जाए या घेरिया हो या भोग हो उत्थे ही पढ़ते हैं। ये असी कॉर्नर किया शब्द नूं, पर वो बारे नहीं है, किसी की फिजिकल डैथ बारे नहीं है शब्द। हुण मैनू जगा रहे ने, मैनू कहते ने पहला फिर हुई सरफेस मीनिंग्स कर लीए। बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आता, पशु मरे 10 काज सवारे, पशु मर जाए बड़े कम आता। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो बाबा रे, मैनू पता नहीं मेरे कर्म की गति होएगी। रहाओ हार्ट जले जैसे लकड़ी का तूला, हार्ट हड्डियां ऐसे जल जाती हैं जैसे लकड़ियां इकट्ठी जल जाती हैं। केस जले, बाल ऐसे जल जाते हैं जैसे घास का फूल है, जैसे घास जल जाती है। कदों जो संस्कार करते हैं। गुरबाणी का उपदेश चौवरना को साझा है। ਜਿਹੜੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ नहीं। गुरबाणी ते शंका नहीं किया जा सकता। गुरबाणी खरा सच है। गुरबाणी सारी दुनिया वास्ते आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच पुराना ना थी है, कदे पुराना नहीं होता, इन्ना खरा सच है। तो गुरबाणी ते 1% भी शक नहीं कर सकते, क्योंकि गुरबाणी पूरी दुनिया वास्ते खरा सच दसदी है। सरफेस मीनिंग कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मुंड में लागे। जो बंदा मर जाता है जम पकड़न आता है, जम सिर से डंडा मारदा, उस वेले बंदा करता हाय की कीता मैं, पर उस वेले जिंदगी बीत गई है। ये सरफेस मीनिंग्स ने। हुण शब्द मेरे ते अप्लाई हो रहा है, मेरी शरीरक डैथ तो पहला अप्लाई हो रहा है, मेरे वास्ते अज हुणे अप्लाई हो रहा है। किवें लभी है साध संगत, साडी कोई चितराई सियाणप कम नहीं आती। गुरबाणी चो गुरबाणी नूं समझांगे। जिथे मैं अपनी चितराई सियाणप लगावां उत्थे मैं सतगुर की मत तो हीना रह जाऊंगा। सतगुर की मत सबसे ऊपर गुर शब्द विचार है। शरदा किनू कहते हैं? हजारों सालों तो सुने, अगर तुम विश्वास के साथ गोबर के ऊपर अगरबत्ती लगा के जो मांगो श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान पूरी कर देगा। हद हो गई है। तेरे अंधविश्वास का ना श्रद्धा नहीं है।
ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, 19 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਰੀ ਫੇਰਨਗੇ, ਰੋਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮਾਲਾ, ਜੀਜ਼ਸ ਜੀਜ਼ਸ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ 7 ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ, ਮਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਐਸੈਂਸ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸੌਂਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਾਓ, ਸੱਚ ਦਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਸ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਤਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਨੋ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਵਰਨਾ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਬਰਫ਼ ਪਵੇ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ट्यून ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, मम्मी कहती है गरम कपड़े स्नो में पहन के जाना चाहिए, नहीं तो बीमार हो जाते हैं। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਦੇ ਤਿਨਕਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂਟ ਕੇ ਗਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਬੀ ਅਵੇਅਰ, ਜਾਗ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਨ ਹਾਰੇ। ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਸੱਚ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਰੇਕਲਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਿਰੇਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਰੇਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਜਿਕ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੀ ਫੇਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਫੇਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਔਨ ਦਿਸ ਅਰਥ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਰਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀਆਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਕੌਲੀ, ਕੁਨਿੰਗਮ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਸ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀਤੇ, नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे, बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आता है, इंसान जब मर जाता है काम नहीं आता है, पशु मर जाए 10 काम आता है। पर मैं उन्होंने लॉजिक पूछण तो पहला यह कहा कि जेकर असी रहाओ तो करिए अर्थ दे तो गुरबाणी का थीम कंपाइलेशन का सिस्टम पूरा होता है। कहते लॉजिक की है, सांझ की लॉजिक ये है, साढ़े अमरीकन लाइसेंस देखो, अमरीकन लाइसेंस के पिछे लिखे जदों मैं मर जावां मेरे ऑर्गनस दूजियां नूं डोनेट कर देना, बंदा ते काम आ गया। 2 अखां चार नहीं 8 अन्नियां नूं काम आंदियां। साडी किडनी तो लैके शरीर के कई बड़े सारे अंग मैडिकल टर्म्स मैं बोल नहीं पावांगा, इत्थे डॉक्टर साहब बैठे ने ये जानते ने ट्रांसप्लांट किवें हुंदा है। मनुख के तो अंग कम आ गए, वाइल्ड लाइफ वाले पशु नूं हथ भी नहीं लाण देंदे। वो कहंदे कहना की चाहते हो? मैं क्या शब्द ना रहाओ तो समझिए। हुण रहाओ कहंदा अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबारी, मैं मेरे बारे गल चल रही है। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो बाबारे, मैं जो अपने ख्याल सोचदा और ख्यालों मुताबिक जिहड़ियां डीड्स करदा, जो एक्शनस लैंदा रहिंदा, उन्हां दा आफ्टर इफेक्ट की होएगा मैनूं पता नहीं है। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो बाबा रे, मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ, मैनूं नहीं पता। माँ बड़ी अरदासा करके पुत्र मंगती है पर उन्होंने नहीं पता इतना सुख मिलेगा कि 25 साल बाद जो नूह आएगी वो मेरे को लै जाएगी। इंसान बड़े प्यार नाल मकान मंगता है, उन्होंने नहीं पता कि कल ये मकान मेरे होंदियां मेरे पुत्र और मेरे जवाई और प्रॉपर्टी का झगड़ा पै जाएगा, मेरे भरा नाल पै जाएगा। जे मैं मर गया मेरी वोटी नूं मेरे पुत्र मेरिया नूहां कोर्ट विच घसीटणगे। मकान सुख वास्ते सी, मुसीबत शुरू हो गई, पता ही नहीं ना की मंगा। इस करके शरदा ये रख के मनु सच समझे, होर कुछ ना मंगी, दूजा भाव ना करी। मेरी गल चल रही है, मेरे गलत थॉट प्रोसेस दी चल रही है। मैं कुछ सोचदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ करदा, ਉਹਦੇ आफ्टर इफेक्ट गलत निकल आते हैं, कॉन्सीक्वेंसिस गलत निकल आते हैं, मैं बड़ा दुखी होंदा। अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे रहाओ विच मेरी गल चल रही है। कोई बंदा मर जाए काम नहीं आता, कोई पशु मर जाए काम आता, किसी की तो गल ही नहीं चल रही। हुण जदों असी शब्द दे मेन पिलर नूं थंमी नूं समझिया, रहाओ नूं समझिया, बेसिक आइडिया नूं समझिया, पिवटल पॉइंट नूं समझिया, शब्द दे भाव अर्थ नूं समझिया, मेरी गल चल रही है, मेरे बारे कोई कहानी चल रही है। हुण शब्द मेरे ते टुकेगा, नरू मरै जदों मेरे अंदरों इंसानियत मर जाती है, when I am inhumane, जदों मैं इंसानियत छड्ड के शैतानियत करन लग पैंदा, मैं किसी काम जोगा नहीं रहता। पशु मरै, जे मेरे अंदरों पशुता मर जाए, पशु वाले एनीमल एक्ट वाले भैड़े डिस्ट्रक्टिव एक दूजे नाल सिंह फसा के बहसा करन वाले, एक दूजे नूं मार मुका देण वाले ख्याल बनते ने ना, ओ बेकार होंदे ने। जे उन्हां ख्यालों नूं मार दिता जाए, पशु वाले ख्यालों नूं,
10 ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰੀ 10 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। मेरे अंदरों नरू मर जाए, मैं किसी काम जोगा नहीं। मेरे अंदरों पशुता मर जाए, आई एम गुड फॉर एवरीथिंग। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤਨੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਟੱਲਿਆ। क्यों कहते हैं? मेरी कोई करतूत ऐसी है। मैं घर विच जो ही वड़दा सारे डर जाते हैं। मैं वड पैना लोगों नूं। मेरी यही आदत, मैं गुरुद्वारे लै जाना, मैं सेवादार जी तो लैके भाई साहब जी तो लैके ग्रंथी जी तो लैके कीर्तन करने वाले सिंघां तो लैके हर किसी नूं वड पैना। मेरे अंदरों नरू मर गया, इंसानियत मर गई है। मैं किसी जोगा नहीं। नरू मरे, नर काम ना आवे, पशु मरे, जे मेरे अंदरों पशुता मर जाए ना, then आई एम गुड फॉर एवरीथिंग। अपने वास्ते भी चंगा, होरना वास्ते भी चंगा। 10 काज सवार रहाओ अगेन थम्मी शब्द दा, अपने कर्म की गत मैं क्या जाना। मैं की जाना, मैं की सोचदा ते की करता रहना। जो असी गलत थॉट प्रोसेस सोचते हैं ना, वो सारा मेरा मन सोचता है। पर गुरु नानक साहब कहते हैं मन की मत, ਇਹਦਾ मतलब मन पहले है। जैसा ब्रेन है, कई लोग कहते हैं असी गुरुद्वारे ब्रेन लिया ही नहीं, असी गुरुद्वारे दिमाग ही नहीं लिया। गुरु कहता गुरुद्वारे दिमाग लिया, पर तेरे मन नूं टिकाणे करना है। तेरा मन पता है कर की करेगा? तेरे मन नूं ना इस दिमाग विच विवेक बुद्धि आ जाएगी ना, सुरत मत बुद्ध उच्ची हो जाएगी, मन नीवा हो जाएगा, विवेक बुद्धि आ जाएगी ना, तेनों नितारा करना आ जाएगा। चंगे कर्म मैं करया करा, मंदे कर्मां तो मैं बचा। विवेक बुद्धि निखेड़ा करना, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, सार अपसर की सार समझना, डिफरेंशिएट करन दी अकल। हुण कहंदे ने जे तू अपना ब्रेन फिक्सअप कराना चाहता है, अपनी सुरत अपना माइंड ठीक करना चाहता है, अपने मन नूं ठीक कर। मन का जिहड़ा थॉट प्रोसेस है उहदे बारे सोच। हुण साध संगत मैं फिर एक बेनती करा, ये मेरे अर्थ नहीं हैं, ये मेरी चितराई नहीं है, एक गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया है। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं समझण वास्ते असीं एक शब्द पढ़ते हैं, कूटन किसै कहो संसार, कूटन किसै कहो संसार, सगल बुलंद कै माही विचार, सगल बुलंद कै माही विचार, कूटन किसै कहो संसार, सगल बुलंद कै माही विचार, सगल बुलंद कै माही विचार। कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे,
सगल बोलन कै माहे विचार, सगल बोलन कै माहे विचार। ए दुनिया दे लोगों तुसी कूटन किनू कहंदे हो? मैं जिन्हों कूटन कवांगा मेरे अर्थ मेरे होणगे। ਤੁਸੀਂ ਕੂਟਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੂਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੂਟਨ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਮਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰੇ, सप्रैस करके फिर आदत पकावे। मैं क्रोध नहीं करना, मैं गालां नहीं कढ़नियां, मैं किसी नूं त्यूड़ी नहीं दिखानी, मैं किसी नूं कूरी नहीं वटनी। कुट कुट मन कसवट्टी लावे, सो कूटन मुकत बो पावे। जो मन नूं कुटदा है वो इंट्रोस्पैक्शन कर रहा है। तुहानूं देख के मैनूं ख्याल आया ए मेरे शहर दा नहीं है, नफरत। ਤੁਹਾਨੂੰ देख के ख्याल आया मेरी जात का नहीं है, नफरत। ਉਹਨੂੰ देख के मन ख्याल आया ही इज़ नॉट ऑफ माई रिलीजन, नफरत। इंज ए मेरे धड़े का नहीं है, नफरत। ये ख्याल पैदा होंदे ने। इस मन नूं कुट समझा, इस तरह नहीं करीदा, इंसानियत दे तल तो ढह पईदा है। मन नूं कुट 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 मन कसवट्टी लावे, सो कूटन मुकत बो पावे। कूटन सोए जो मन को कूटे, ओ कूटन है। मेरे वास्ते ओ पिंप जेड़ा तुसी कहंदे हो भैड़े वाला, मेरे वास्ते ओ मन चंगे वाला है जेड़ा कूटन सोए जो मन को कूटे। मन कूटे तो जम ते छूटा, भैड़े ख्याल छुट जाते ने। You have to suppress your bad thoughts, then you will be free from the bad deeds. Bad deeds ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। Bad deeds ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਮਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, हर कीर्तन में ये मन जाग गया। ऐसा कुछ कर जिहदे नाल तैनूं मैल ना लगे। मैं सोचा अच्छा मैं धर्म स्थान ते चलदा, मैं धार्मिक स्थान ते भी जाके मैनूं ये मैल लग गई मैं पवित्र हाँ, तुसीं सारे अपवित्र हो। मैनूं होर मैल लग गई, मैं धर्म की अपना लिया, मेरे से सारे पापी हो गए ने, मैं सचखंड पहुंच गया। अजीब मैल मैनूं लग गई है। ऐसा कुछ कर जिहदे नाल तैनूं मैल ना लगे, मत ये होवे कि धार्मिक स्थान ते जाके तैनूं मैल ही लग जाए। तू सबनों अपवित्र ते झूठा झूठा समझदा रहे। ओए मेरे मन, तू सुचियां थावां बनाना फिरना है, हाथ पैर धोंदा फिरना है, बड़ा बाहरों सुच्चा बनया फिरदा है, बड़ा तीर्थां ते नांदा फिरना है, धरती ते किहड़ी जगह जिहड़ी सुची है। मेरे मन नूं कहंदे ने कहो पंडित सूचा कौन थाओ। मेरा मन पंडित बनया फिरदा है। जदों असीं धार्मिक वेता बन जाते हैं, अपने आप नूं समझदे हैं मैं पवित्र हाँ, तुहानूं उपदेश कर सकदा हाँ, उस वेले मेरे मन की उस अवस्था नूं पंडित कहंदे ने। हुण कहंदे ने देख इन्हां ख्यालों तो छुट, इन्हां ख्यालों दे नाल ना पता की हुंदा है, तू एक झूठी स्टैंडिंग बनाना है। उहनूं कहंदे ने स्टैंडिंग की हुंदा है, असीं जदों खड़े हुंदे हां ना, साडी हड्डियां ते खड़े हुंदे हां, साडा सारा शरीर जिहड़ा खड़ा है ना, ये साडे हड्डियां दे स्कैलेटन पिंजर ते खड़ा है। इहदे सड़न दी नहीं गल चल रही। मैं एक झूठी स्टैंडिंग बनाई हुई है समाज विच, सोसाइटी विच, दुनिया विच। मैं बहुत अमीर हाँ, मैं बहुत पढ़िया लिखिया हाँ, मेरे को नॉलेज बड़ी है, मैं धर्मी बड़ा हाँ, मैनू बड़ी दुनिया मनती है, मेरी सब जगह बड़ी चलती है। मैं धार्मिक स्थान पर भी जाके अपने धड़े बना लेना, अपने ग्रुप बना लेना और सब जगह मेरी चलती है। मैं अपना ग्रुप बना के अपने ग्रुप विच मस्त रहना। तू मैनू मियाँ मियाँ आख, मैं तेनू हाजी हाजी आखा। मावां धीआं शीरा रिद्दा मिठा पाई मिठा करके मैं मस्त रहना वा। यह जिहड़ी तेरी स्टैंडिंग दी हड्डियां ने ना, सच दे सामने सड़ जांदियां ने। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला,
तू झूठी स्टैंडिंग दी हड्डियां ते खड़ा है। ए जिस लकड़ा सड़ जाती है एन सड़ जाता है। कदों सड़ता है? साध संगत तुसीं हुण लॉजिक एक बनाओ, जदों भी तुसीं सोने नूं अग उत्ते रखोगे ना, पहला की सड़दा? सोना नहीं सड़दा, कूड़ सड़दी है, झूठ सड़दा है, अवगुण सड़दे ने, इंप्योरिटी सड़दियां ने। इंप्योरिटी साड़न वास्ते मैनू गुरबाणी मेरे सारे अवगुण कड्ढदी है, मैनू प्योर बनाती है, मैनू खालसा बनाती है। दिनों दिन मैनू खालसा की जर्नी कराई जाती है, अवगुण छोड़ गुणा पुतावो कराई जाती है। मैनू हार्ट जले जैसे लकड़ी का तुला, केस जले जैसे घास का पुला, एंड सड़ जाते हैं। कदों? जदों सच। पर जदों सच आए ना, हुंदा की है सच आए तो? देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, 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 सब है उड़ानी ब्रह्म की घाटी, सब है उड़ानी ब्रह्म की घाटी, रहना माया बांधी, रहना माया बांधी, देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, देखो पाई ज्ञान की आंधी। जदों हनेरी आएगी ना, छत्तां उड़ जांदियां ने, छप्पड़ उड़ जाते ने। केड़े? झूठ दे। ज्ञान की आंधी आती है ना, जो सच आंदा है। सब ने अपने दिमाग उत्ते, अपनी मन की मत उत्ते भरम दा टाट ओढ़िया होया, भरम की छत बनाई हुई है। जो ही ज्ञान की आंधी आई, सब उड़ानी भ्रम की टाटी, रह ना माया बांधी, छत उड़ा के लै जाती है। दुचित्ते की दो थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, सारा पिलर ढह पैंदा, बीम ढह पैंदी है, छत तृष्णा छान परी धर उपर, दुरमत भांडा फूटा, दुरमत दा भांडा फुट जाता है, कूड़ उड़ के चली जाती है। डुअलिटी मन के ख्यालों की माया चली जाती है, टिक नहीं सकती। जदों कूड़ चला गया ना, हर वेले अपनी तूती बजांदा सी कूड़, हर वेले झूठ बोलता रहता सी, हर वेले मैनू पुट्ठा टंगी रखता सी, हर वेले डिस्टर्ब रखता सी। जदों मैनू मन अपने गंदे ख्यालों के नाल मैनू हर वेले डिस्टर्ब रखता है ना, मैं क्रोध करता रहना। घर वाले कहते हैं आस्ता बोलो, देखो तुहाडा सिर दर्द हो जाएगा, आस्ता बोलो नस पट जाएगी, आस्ता बोलो, देखो तुहाडी अखां 'च खून उतर आया, देखो ना की करदे हो, कंबदे पे हो, अपने ते तरस करो ना। जदों मैं इंज करदा, मैनू डिस्टर्ब पता कौन करता है? ओ मन जिन्नू पुछया इतनी मार पई करलाने, तै की दर्द ना आया? मन तेनू समझ नहीं आ रही, मैं ना डिस्टर्ब हो रहा, सारा शरीर तू डिस्टर्ब करके रखा है। मेरे मन नू पुछया जा रहा है इतनी मार पई करलाने, तै की दर्द ना आया? समझ नहीं आ रही तेनू, मनु घुमांदा फिरना, सतगुर दी मत लै लेना, सीधे पासे पै जावांगा, टिक जावांगा। सो हुण कहंदे ने जदों सच आंदा है, झूठ 4 दिन अपनी नौबत वजा के चला जाता है। उन्होंने कहते ने 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया
मटिया इतनक खटिया गठिया मटिया संग न कछ ले जाए संग न कछ ले जाए चार दिन अपनी नौबत चले बजाए। 4 दिन, few days, few years, मन अपनी तूती बजा बजू के चला गया। इतना खटिया जो इन्हें खटिया सी ना कूड़ कबाड़ भैड़े ख्याल, इतना खटिया गठिया पुलंदा बन्या होया सी अपनी पोटली दिमाग अंदर रखे सी। मैं इन्ना भैड़ा, मेरे इन्ने बंदे ने, मैं तुहानू डरा देंगा, मैं तुहानू मार देंगा, साडी इत्थे चलदी है। ये जिहड़ी गठिया सिर ते बन्नी हुई है ना कूड़ कबाड़ दी, इतनक खटिया गठिया मटिया मिट्टी संग न कछ ले जाए। जे तू अंतर आत्मे अंदर अपने रब नाल जे इकलिक होना चाहता ना, उत्थे तू एक कूड़ कबाड़ दी गठिया मठिया नहीं ले जा सकता। इतनक खटिया गठिया मटिया संग न कछ ले जाए, क्योंकि उत्थे अंदर कूड़ जा नहीं सकती। जिवें भांडे अंदर कूड़ होवे, गंदा होवे, चंगा दूध नहीं पै सकता, इस तरह रब जी दे नाल इकमिकता वननेस विद गॉड इफ यू वांट टू अटेन, तू नरू मरे वाले काम नहीं कर सकता, तू भैड़ी झूठी स्टैंडिंग ते नहीं खड़ा हो सकता। साडी भैड़ी झूठी स्टैंडिंग है ना, असी सारी दुनिया नूं कही जाने असी बड़े शरीफ होंने, असी खालसे होंदे, असी सरदार होंने, असी अमृत छकोया, पर सारे दाज लई जाने। झूठी स्टैंडिंग है, सारे दाज लई जाने, सारे पुत्र मंगी जाने। कितनी झूठी स्टैंडिंग है साडी। वो मंदिर चेक करा के कुड़ी नूं मरवा देने, सारी दुनिया भी सारे करते हैं, पर असी भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सानू तो गुरु ने सिखाया है कि जिहड़ी बच्ची अज जम्मी है, ये धी भैन मां बनेगी, नानी दादी बनेगी, इसनू भैड़ा ना क्या कर। सो क्यों मंदा आखे जी जम्मै राजान, पंक्ति असी पढ़ते हैं पर असी कुछ भी नहीं समझते। असी भी डिस्क्रिमिनेशन पै गए। झूठी स्टैंडिंग है। गुरु पातशाह सानू इजाजत नहीं देंदे कि दाज लईए या दाज दईए। गुरु पातशाह इजाजत नहीं देंदे कि शराबां पीवीए और डांस करिए। गुरु पातशाह सानू इजाजत नहीं देंदे ने, पर साडी झूठी स्टैंडिंग है। लोकी 4 दिन साडे नेड़े आते ने, साडे अवगुण देखते हैं, उन्होंने खुशबू नहीं आती, परे हो जाते हैं। गुरु पातशाह कह रहे हैं, ये झूठे ख्याल दियां हड्डियां सड़ जांदियां ने। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास का पूला। हुण जिहड़े शरीरक तौर पर डेथ हो जाते साड़ते हैं, या जिहड़े दबाते हैं, या जिहड़े पानी सुटते हैं, सारियां ते शब्द अप्लाई हो गया कि झूठ दियां हड्डियां सड़ जांदियां ने। भावें वो साड़ते नहीं हैं शरीरक नूं, डैड बॉडी के डिस्पोजल भावें नहीं करते हैं, सारी दुनिया उससे उपदेश जो साझा है। हार्ट जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास का पूला। हर इंसान का थॉट प्रोसैस ठीक किया जाए तो उहदे केस चवर कर फेरी करते हैं। उस केस मीनस उहदा थॉट प्रोसैस सच वाले पासे आ जाता है, नम्रता करन लग पैंदा है, हंबल हो जाता है, ह्यूमिलिटी सीख जाता है। केसां दा प्रतीक गुरमति च कि सतगुर दी मत लै, नम्रता च रिहा कर। अगे कहते हैं, कहो कबीर तब ही नर जागै, मनुख तां जागदा है जदों इनू जम का डंड मूंड में लग। जदों असी गलत काम करते हैं, गलत काम के नाल खुआर होंदे हैं, अपसैट होंदे हैं, डर लगता रहता है, चिंता लगी रहती है, अते उस तो बाद पनिशमेंट भी मिलती रहती है, तां असी कहते हैं हाय मुड़ के काम नहीं करांगा। कई बार सुनिया ना, बेचारे घरों पंजाब तो माँ प्यो की जमीन वेच के, भांडे वेच के इलीगल वीज़ा लैके आते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के जेलों च फसे रहते हैं। उस वेले वो कहते हैं हाय मुड़ के ऐसा काम नहीं करांगा, मेरा पंजाब भी घर ठीक है, मेरे माँ प्यो ही ठीक ने, मैं उत्थे खेती कर लवांगा, रक्षा ही चला लवांगा, पर मुड़ के अंदर तंग हो रहे होंगे ना,
कोई भी गलत काम करके जदों असी तंग होने हाँ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ में ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੰਮ मतलब ਵਿਕਾਰ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ। ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਰੂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਕੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। 4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁਰ, ਘੋੜਾ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਕਈ ਹੰਟਰ ਮਾਰਦਾ, ਘੋੜਾ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਮਾਲਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੰਟਰ ਮਾਰਦਾ, ਘੋੜਾ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਘੋੜਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਸਿਰਫ ਹੰਟਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਚੌਥਾ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਘੋੜਾ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਬਣਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਨਿਸ਼ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਲਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ बनना। शराब पी पी के जो मेरा लीवर खराब हो जाएगा, पी लिया हो जाएगा, डॉक्टर कहेगा सिंगल ड्रॉप ऑफ एल्कोहल इज पॉइजन फॉर यू, ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਿੱਗ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਗਾਇਆ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ इंसान बन। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत जरा ज़्यादा। ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਐਂਜਲਸ ਆਣਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ,